नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रजा सेना से मंत्री ईश्वर खंड्रे को सौंपा ज्ञापन। बीएसवाई श्रीरामुलु बोम्मई डॉक्टर सुधाकर पर कोविड-19 घोटाले की आंच आने की संभावना है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री ने आरक्षण की लड़ाई को असंवैधानिक बताकर पंचमसाली लिंगायतों का अपमान किया। संत ने लगाया आरोप। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर असमंजस, सोमवार को लोकसभा में नहीं पेश होगा विधेयक। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, पार्टी नेता आप में शामिल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रजा सेना द्वारा आज रमेश पासवान के नेतृत्व में शहर के मेलूर क्रॉस और उसके आसपास ठेले पर कारोबार करने वालों के साथ जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे के कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई कि सड़क पर अस्थायी रूप से कारोबार करने वालों को प्रशासन द्वारा सड़कों पर इस प्रकार का कारोबार करने से रोका जा रहा है, जबकि यह लोग पिछले 15-20 वर्षों से अपना कारोबार कर अपना परिवार चला रहे हैं। आज प्रशासन के रोक लगाने से इन गरीब व्यापारियों का कारोबार रोकने से उनके बच्चों की स्कूल की फीस सहित जीवन चलना मुश्किल बना हुआ है। इस संबंध में मंत्री ईश्वर खंड्रे से सेना ने आग्रह किया है कि इन गरीब लोगों को कारोबार करने दिया जाए। कैमरामैन महेश का कवरेज। ನಾನು ಸುಮಾರು 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ಕೂತೀನಿ. ಈಗ ನಾಮಕರಣ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಮೈಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪಜೀವನ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಎಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನದ CMCದವ್ರು ಬಂದು ಏನದ ನಮ್ಗೆ ಕಿರ್ಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಯಂ ಆಗಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಅದು. ಹಾಂ, ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇದು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಜಾಗ ಖಾಯಂ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಿನ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಂದು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಯಂ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಡ್ಡು ಅಥವಾ ಸೆಟರ್ ದುಕಾನು ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಏನದ ದಿನ 50 ತೊಗೊಳ್ರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಚೌಕ ಅದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೆವು ಸಣ್ಣದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕರೆ ನಮಗೆ ಡಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದು? ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಕಾನ್ ತೆಗಿಂದಿಲ್ಲತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಈ ಲಿಡ್ಕರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಲಿಡ್ಕರ್ ನಮಗೆ ಡಬ್ಬಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ತೆಗಿಬಿಡಾಕಂತ, ಡೀಸೆಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ತೆಗಿಬಿಡಾಕಂತ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಂಡರು ಹಿಂಗಾರ ನಾವು ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಬದುಕ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೊಡಬೇಕಂತ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಭೀ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದು ಹಾಕ್ರಿ, ಇದು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿವಾಗ ಕೂತಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ನಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಶಾಸಕರು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಸಾಕು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಭಾಳ ಹೋಗ್ಯದ ಬಾರ್ ಅದೇ ಮಾಡಿ ಬಾರ್ ಅದೇ ಮಾಡಂದ್ರೆ ನಮ್ಲಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಯದ ಸರ್. ನಮಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ತೆಗೆದ ಅದು ರೊಕ್ಕ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ದಿನ ಹೋಗ್ಲಾಕ ಬರ್ಲಾಕ ನಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತಿದ್ದೆ ನಾವು. ಈಗ ಬರ್ತಾರ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ, ಆಗ ಬರ್ತಾರ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ, ಯಾರು ತೆಗಿತಾರೋ ಯಾರು ಇಕ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅಂಜಿಕೆಲಿಂದ 4 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸರ್. ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅಂಬೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. 5 ದಿನದ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬದುಕ್ಲತ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ತೆಗಿತಾರ ಅದಕ್ಕಿತಾರ. ನಾವು ಚಪ್ಪಲ್ ಶಾಪ್ ಅದ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಡಬ್ಬಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್ ನಮಗೀಗ ನಾವು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಲ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬೀದಿ ಮೇಲೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಬೀದಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಲ ಹೆಂಗೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು? ಮಕ್ಕಳು ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು? ತೆಗಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಬಂದಾರ್ರಿ, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಮೊನ್ನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಿಂದೊಡ್ಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಮೇಲೂರು ಕ್ರಾಸ್, ಈಗ ಚಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನೂ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಐತೆ, ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೂ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಅದ ನಂದು. ಸುಮಾರು ನಾವು ಒಂದು 17ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ವಿ.
ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಸಡನ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 3 ದಿವಸ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳೋಗ್ಯಾರ. ಅರ್ಧ ತಾಸನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರಿ. ನಮ್ಮದು ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ 2 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಹಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು 17ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಲೆತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏಕೈಕೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲು 10 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗ್ತಿದ್ರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಯದ, 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಯದ. ಜರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಾಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗಿಲ್ಲ. 10 ರೂಪಾಯಿ 30, 20, 30 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳತ್ತಾರ. 30 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನೂ ಕಟ್ಲತ್ತಿದ್ದೆವು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋನು ಆಗ್ಯಾವ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ನೂ ಆಗ್ಯಾವ. ಬಟ್ ಏಕೈಕೆ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಮೀಡಿಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಮಗೆ ಗರೀಬರು ಇದ್ದೆವು, ಮಾಡ್ತಿಂಬ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದೆವು, ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು फिरोज है, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ मेलू क्रॉस पे। मैं नारल बेचता हूँ 15 साल से। 2 रुपये चिट्ठी जब से काम कर रहा हूँ मैं। आज वो चिट्ठी 20 रुपये हो गई है। मैं 15 साल से एक ही जगह पे काम कर रहा हूँ। हर ट्रिप आ रही, हर कोई आ रहा है, 4 दिन को एक बार आ रहे हैं, निकालो इस जगह पे नहीं बैठना। कोई म्यूनसिपाल्टी वाला आ रहा है, कोई लेबर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उठा दो इस जगह पे से कभी भी नहीं बैठना हो रही। हम 15 साल से यहीं पे काम कर रहे हैं और हर तरह के लोन लेके बैठे हुए हैं। हमको कर्जा टू मच कर्जा हो गया साहब। हम जाना कहाँ बोलो? रोड पे जीना, कहाँ जीना? तुम लोग हमारे को एक रास्ता बताओ, नहीं तो हमको एक जगह दो, एक मुकाम बनाओ। हमको 5 फीट की भी जगह दो, 5 फीट का मलगी भी दे, तुम वो जगह पे जी लेते हम। हाँ, 20 के जगह तुम 50 रुपये लो, ಖುಷಿ हमारे खुशी है, मगर हमको वो जगह से नको निकालो। तमाम अध्यक्ष, तमाम जितने भी बड़े लोग हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, हम वहीं पे जिएंगे, वहीं पे मरेंगे, जितने भी साल जिएंगे वहीं पे जिएंगे। हम वो जगह को छोड़ेंगे नहीं, हम वो जगह को छोड़ेंगे नहीं। तमाम हमारे जितने भी लेबर्स वहाँ पे काम करते हैं, तमाम जितने भी भंडियाँ हैं, गपचूप की भंडी है, तरकारी की भंडी है, पान शॉप है, हर जितने भी सारे तमाम है, तमाम से मेरी गुजारिश है बड़े लोग से, ये हमारा काम बड़े लोग करके देना। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ದಿವಸದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೈಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಶ್ರೀಮಂತರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಜಮೀನು ಜಾಯ್ದಾಸ್ ಇದ್ದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರೋಬಾರ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಜುಕೇಷನು, ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಕಾರೋಬಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಕಳ್ಳಂಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान पीपीआई किट
N95 मास्क और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं में शामिल होने के लिए कई अधिकारियों और निजी कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिससे तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार येदियुरप्पा के अलावा उनके उत्तराधिकारी बसवराज बोम्मई और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर पर भी गाज गिर सकती है। कांग्रेस सरकार जल्द ही कथित बहुकरोड़ घोटाले की जांच के लिए एक आईजीपी या एडीजीपी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन कर सकती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, चूंकि अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की जाएगी, इसीलिए कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच के लिए एसआईटी की गठन करना बेहतर होगा। ऐसा करने की योजना थी क्योंकि कैबिनेट ने 14 नवम्बर को एक निर्णय लिया था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कलबुर्गी में संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, डीसीएम डीके शिव कुमार और गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर एसआईटी के गठन पर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा, इस संबंध में भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, क्योंकि सरकार केवल अपना काम कर रही है, क्योंकि कुप्रबंधन के कारण लोगों को महामारी के दौरान बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। कूड़ल संगम के बसवा जया मृत्युंजय स्वामी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सेकेंड श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए उनके आंदोलन को असंवैधानिक बताकर पंचमसाली लिंगायतों का अपमान किया है। संत ने मांग की है कि मुख्यमंत्री अपना बयान वापस ले और माफी मांगे। सिद्धरामैया के प्रति हमारे मन में कुछ सम्मान था, क्योंकि वे बसवन्ना और डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की प्रशंसा करते थे, लेकिन वे पिछले 2 सालों से हमारी मांग को दबाने की कोशिश करके हमें गलत साबित कर रहे हैं। अगर हमारी लड़ाई असंवैधानिक है तो हमारी लड़ाई में भाग लेने वाले कैबिनेट मंत्रियों को निलंबित करे। अगर सिद्धरामैया हमें आरक्षण नहीं देना चाहते तो अपना रुख स्पष्ट करें। हम न्याय पाने के लिए एक अलग रास्ता खोज लेंगे। हम लोगों के पास जाएंगे। संत ने कहा है कि उनके आंदोलन को असंवैधानिक बताकर मुख्यमंत्री ने समुदाय के सदस्यों का अपमान किया है। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लोगों को दुर्लभ चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के लिए 35 करोड़ रुपए के कोष के निर्माण को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य उच्च लागत वाले उपचारों के वित्तीय बोझ को कम करना है। इस कोष का प्रबंध सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट एसएएसटी के माध्यम से किया जाएगा और मौजूदा राज्य और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के तहत कवर नहीं किए गए उपचारों को प्राथमिकता दी जाएगी। शुरुआत में बजट प्रावधान को लागू करने का काम समाज कल्याण विभाग को सौंपा गया था। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई चर्चा के बाद यह जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सौंप दी गई। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। यह बिल पहले सोमवार 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश होना था। भाजपा यह 16 तारीख में लिस्टेड भी था, लेकिन अब यह बिल सोमवार को लोकसभा में पेश नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा की संशोधित सूची में यह बिल नहीं है। बता दें कि सरकार ने इस बिल की कॉपी सांसदों को भी भेज दी थी ताकि वे इसका अध्ययन कर सके। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को खत्म हो रहा है। अगर यह बिल 16 दिसंबर को पेश नहीं होता है तो फिर सरकार के पास 4 दिन ही बाकी रहेंगे। ऐसे में इस बिल पर चर्चा होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन को 12 दिसंबर को मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने 2 ड्राफ्ट कानूनों में मंजूरी दी थी, जिसमें एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है, जबकि दूसरा विधेयक विधानसभाओं वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों के
एक साथ चुनाव से जुड़ा है। एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है, जबकि दूसरा विधेयक विधानसभाओं वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों के एक साथ चुनाव से जुड़ा है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत, जबकि दूसरे विधेयक के लिए सदन में सामान्य बहुमत की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में इस विचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 2 नेताओं ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। कस्तूरबा नगर विधानसभा के कोटला मुबारकपुर वार्ड से बीजेपी पार्षद कुसुमलता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। कुसुमलता के साथ ही उनके पति रमेश पहलवान भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कुसुमलता और उनके पति रमेश पहलवान को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई और स्वागत किया। कुसुमलता ने कहा है कि अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूं कि आज आपके साथ जुड़ी हूं। वहीं रमेश पहलवान ने कहा, मेरी आज घर वापसी हो रही है। मैं समझता हूं कि मैं दोबारा से सही जगह आया हूं। उन्होंने कहा, दिल्ली की दिल की धड़कन अरविंद केजरीवाल है। इससे पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह शंटी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। शहीद भगत सिंह ABS फाउंडेशन के अध्यक्ष शंटी को कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान उनके मानवीय प्रयासों के लिए पहचान मिली थी और उन्हें 2021 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। शंटी शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक भी हैं। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार तथा उसके बाद क्रियाकर्म हिंदू एवं सिख परंपराओं के अनुसार करता है। शंटी 2013 से 2015 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच WHEF के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार में श्रमिकों के सम्मान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का निर्माण करने वाले मजदूरों को सम्मान किया है, वहीं ताजमहल बनाने वाले श्रमिकों को हाथ काट दिए थे। मुंबई के BKC स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 13 दिसंबर से शुरू हुआ विश्व हिंदू आर्थिक मंच आज 15 दिसंबर तक चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमिकों को कैसे सम्मान दे रहे थे। एक तरफ जहां PM उन पर फूल बरसा रहे थे, वहीं दूसरी ओर इससे पहले की स्थिति ऐसी थी कि ताजमहल का निर्माण करने वाले श्रमिकों के हाथ काट दिए गए थे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इतिहास में वस्त्र उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के भी हाथ काट दिए गए थे, जिससे एक पूरी परंपरा और विरासत नष्ट हो गई। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने धार्मिक संरचनाओं को सर्वे करने और ध्वस्त करने की मंशा पर सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा, अगर मैं संसद की खुदाई करूं और कुछ मिल जाए तो क्या ये जगह मेरी हो जाएगी। बता दें कि ओवैसी लोकसभा में भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित बहस में बोल रहे थे। ओवैसी ने अनुच्छेद 25 और उसके प्रावधानों का जिक्र करते हुए संसद की खुदाई वाली बात कही। ओवैसी ने कहा, मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल तुम्हारी मस्जिद थी या नहीं थी। ख्वाजा अजमेर के दरगाह के बारे में भी यह कहा जा रहा है कि नहीं है। अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं और कुछ मिल जाए तो क्या यह मेरी हो जाएगी। बता दें कि 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर दाखिल याचिका पर कहा था कि इन याचिकाओं पर सुनवाई समाप्त होने तक किसी भी धार्मिक स्थल का सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर वक्फ की संपत्तियों को छीनने का भी आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। आर्टिकल 26 पढ़ लीजिए, आप अपनी ताकत की बुनियाद पर इसे छीनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी BJP के पूर्व सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर बयान देते हुए कहा है कि आजादी के बाद देश में एक साथ चुनाव होते रहे, लेकिन बाद में इसे हटाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का सबसे अधिक दुरुपयोग किया और कई चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। ब्रजभूषण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह निर्णय देश के हित में लिया है। बार बार चुनाव होने से विकास कार्यों में रुकावट आती है और इससे देश को नुकसान होता है। केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश करेगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल 12 दिसंबर को इन विधेयकों को मंजूरी दी थी। एक विधेयक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने के संबंधित है, जबकि दूसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव से जुड़ा है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year
2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में इस साल का पहला बर्फीला तूफान आ चुका है और लाखों लोगों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। अमेरिका के आयोवा एवं पूर्वी नेब्रास्का में बर्फीले तूफान ने तबाही मचा दी है। बर्फीले तूफान के कारण सड़कों पर बर्फ जम गई है और कई वाहनों के फिसलने की घटनाओं के कारण इंटरस्टेट 80 राजमार्ग को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। हालात ये हैं कि डिजिटल विजिबिलिटी भी लगभग 0 हो चुकी है और क्षेत्र में आयोजित होने वाले कई कार्यक्रम तूफान की वजह से रद्द किए गए हैं। इसी बीच पूर्वी नेब्रास्का में सड़कों पर जमी बर्फ के कारण हुई एक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। लोगों ने कहा कि जरूरत होने पर वो घरों से बाहर निकले। वॉशिंगटन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने बताया कि 57 वर्षीय महिला हाईवे 30 पर अपने वाहन पर से नियंत्रण खो बैठी और सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। ट्रक के चालक को मामूली चोटें आई हैं, अन्यथा अन्य स्थानों पर 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के कारण सैन फ्रांसिस्को में तूफान की चेतावनी जारी की गई है। सबसे बड़ा खतरा इस समय टॉर्नेडो का है। ऐसे में मौसम में अगर टॉर्नेडो बन गए तो वो भयानक तबाही मचा सकते हैं। इससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह के नेता ने कहा है कि सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का पतन होने के बाद उसकी मुख्य आपूर्ति लाइन कट गई है, लेकिन वह हथियार लाने के अन्य तरीके खोज सकता है। हिजबुल्लाह असद का मुख्य समर्थक था और उसने पिछले दशक में हजारों लड़ाके सीरिया भेजे थे। दशकों तक हिजबुल्लाह ईरान से हथियारों के लिए एक माध्यम के रूप में सीरिया पर निर्भर रहा है। बशर अल असद की सत्ता का पतन होने के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने कहा कि समूह की सीरिया से होकर गुजरने वाली सैन्य आपूर्ति लाइन कट गई है। हिजबुल्लाह नेता ने कहा कि वहां का नया प्राधिकरण इस मार्ग को बहाल कर सकता है, अन्यथा हम अन्य तरीके ढूंढ सकते हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रजा सेना से मंत्री ईश्वर खंड्रे को सौंपा ज्ञापन। बीएसवाई श्रीरामुलु बोम्मई डॉक्टर सुधाकर पर कोविड-19 घोटाले की आंच आने की संभावना है। कर्नाटका में मुख्यमंत्री ने आरक्षण की लड़ाई को असंवैधानिक बताकर पंचमसाली लिंगायतों का अपमान किया। संत ने लगाया आरोप। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर असमंजस, सोमवार को लोकसभा में नहीं पेश होगा विधेयक। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, पार्टी नेता आप में शामिल। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।